Friends, today the discussion is about other issues. Price rise. ధరలు ఆకాశంలో ప్రజలు పాతాళంలో ఇలాంటి పరిస్థితి మన దేశంలోని ప్రజానికి అంత కూడా స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. Prices are skyrocketing. People are weeping and Sonia Manmohan are sleeping. They don't have any clue also. Along with them, Rahul Gandhi also is sleeping. He just woke up only day before yesterday. Friends, what is the alternative? Some people are talking about third front. कुछ लोग बता रहे हैं तीसरा मोर्चा आएगा. अरे भाई तीसरा मोर्चा का अनुभव लोगों ने देखा है. We have seen national front, it became a national front. We have seen united front, it became a divided front. We have seen third front, it became a third-rate front at that time. We have all our experience before us. इसलिए कोई तीसरा मोर्चा बनने वाला नहीं है, बने तो भी चलने वाला नहीं है और कोई विकल्प भी नहीं है. मित्रों, हमने देवेगौड़ा जी का अनुभव देखा, चंद्रशेखर जी का अनुभव देखा, वीपी सिंह का अनुभव देखा, गुजराल जी का अनुभव देखा. इसलिए ये तीसरा मोर्चा कोई विकल्प नहीं हो सकता है. मैं एक विषय आपको बताना चाहता हूं. The so-called pundits who are promoting this third front, let them understand, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी एक साथ नहीं चा पाएगा. DMK and ADMK cannot go together. Telugu Desam and YSRCP cannot go together. Trinamool Congress and CPM cannot go together. JDU and RJD cannot go together. That being the case, where is the third front? Let us ask our friends who are there promoting the third front. ये कहां से तीसरा मोर्चा आएगा? और ये तीसरा मोर्चा लोग कौन है? जो लोग कांग्रेस को समर्थन दे रहे, जो लोग कांग्रेस का भ्रष्टाचार को हमेशा खुले आम से समर्थन कर रहे, ये लोग विकल्प हो सकता है क्या? Can they be an alternative? People who are supporting the Congress party in all scams and scandals, can they become an alternative? They are also equal partners in this loot and cheat of the country. They are also equally responsible for all the things that have happened in the country and happening in the country. But for them, this UPA would have gone long back, but for their support. मगर वो लोग नाटक करते, वो लोग भी कांग्रेस का आलोचना करते. अभी चुनाव में आके मुलायम सिंह, चुनाव में आके मायावती, चुनाव में आके DMK, चुनाव में आके सभी पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोग कह रहे हम विकल्प है, हम बेहतर विकल्प देंगे. अरे भाई, आप भी इसमें भागीदारी है, लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा. ये सब लोग इसमें भागीदारी है. मित्रों, मैं एक विषय बताना चाहता हूं, पार्लियामेंट में भी बोला मैंने. इन लोगों ने सभी कांग्रेस का पाप को सपोर्ट किया इन लोगों ने, और ऐसी पाप को सपोर्ट करने वाले लोगों को जनता के सामने आके विकल्प के रूप में खड़े होने का अधिकार है क्या? इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए. इन लोगों का 3 सूत्र कार्यक्रम है. क्या है? 3 पॉइंट प्रोग्राम. मॉर्निंग टॉक आउट, आफ्टरनून वॉक आउट, evening and late night bail out of the government. That is the 3-point program of this third front and third front parties. So let us educate the people about the intentions of these third front forces and about the real face of this third front also. This is also equally important. Friends, now some people are talking of Aam Aadmi. Let them talk, we have no problem. But Aam Aadmi party, the day when they took the support of the Congress party, against whom they started a movement and said that they will send them to jail. Now the Aam Aadmi party and Congress party has come together, and the Aam Aadmi party lost all its moral credibility on the same day. It will not be too far, and the Congress and Aam Aadmi will get separated, and then this sort of politics in the country, दिल्ली में कोऑपरेशन, देश भर में ऑपरेशन, बीच में सेपरेशन, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. इसको हमेशा याद रखना चाहिए. Same is the case with Samajwadi. Support in UP, oppose in support in Delhi, oppose in Lucknow. Same is the case in DMK. Support in Delhi, oppose in Tamil Nadu. ये कैसा चलेगा? Same is the case with communist parties also. इसलिए मित्रों, देश के सामने एकमात्र विकल्प है. वो विकल्प भारतीय जनता पार्टी है. एकमात्र नेता है श्री नरेंद्र भाई मोदी है. नरेंद्र भाई का नेतृत्व के बारे में, नरेंद्र भाई के नेतृत्व के बारे में, इनका कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी एंड कंडक्ट, his discipline, dynamism, dedication, determination has no parallel in any other party in the country. Let us feel proud of our leader and project him and go to the people, explain the qualities of the leadership. Explain the qualities of the leadership. Why Narendra Modi? Because Narendra Modi is the 3D. Modi 3D. Decisive, निर्णायक, डायनेमिक, दृढ़ निर्णय करने वाले और डेवलपमेंट ओरिएंटेड, विकास का
आगे बढ़ाने वाले। सो डेसिसिव, डायनेमिक एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड 3D is Narendra Modi. He is our leader. We must all feel proud of the same and then must convey to the people. The reason मैं देश भर में घूमता रहता हूँ, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बस स्टैंड में, सिनेमा हॉल में, रेस्टोरेंट में, चाय दुकान में, कहीं भी जाए लोग चर्चा करते हैं कांग्रेस को छुट्टी करना है, नरेंद्र मोदी को लाना है। ये सब देश भर में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, पूर्वोत्तर में, सभी इलाके में एक ही नारा, मोदी 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 मोदी। ऐसा दृश्य देश के सामने है। मित्रों, this should reverberate in the entire country. फ्रॉम अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पूरा देश में यही नारा होना चाहिए। और एक हाथ में डेवलपमेंट एजेंडा, दूसरी हाथ में हमारा नेतृत्व के बारे में, उनका गुणगान के बारे में लोगों को बताना, यह भी हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। कल किसी व्यक्ति ने, एक अहंकार व्यक्ति ने कमेंट किया, चाय बेचने वाले क्या प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? अरे भाई, हम लोग चाय बेचने वाले हैं, आप लोग देश बेचने वाले हैं। शर्म होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। देशवासियों से पूछो क्या चाय बेचना पाप है क्या? देश बेचना ये पुण्य है क्या? कांग्रेस से पूछो। ये अहंकारिता का पराकाष्ठा है, मूर्खता का पराकाष्ठा है। अहंकारिता और मूर्खता दोनों कांग्रेस का स्वभाव है। ये केवल मणिशंकर अय्यर का व्याख्या नहीं है, ये व्याख्या कांग्रेस पार्टी का है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन किया नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सोच कैसा है, आम आदमी को बताना चाहिए। मित्रों, हम हमारा नेता का बैकग्राउंड के बारे में हम गर्व महसूस करते हैं। We have so many leaders with that background, as said by our president yesterday. We have a humble beginning. We feel proud that our leader has come from that background. There is संकोच करने का कोई जरूरत नहीं है, संकोच करने का कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, हम विश्वास के साथ जाना है। We have trusted, tested and successful leadership. They have tested, rusted, failed the leadership of the Congress party. मित्रों, why no projection? Because of fear of rejection. That is the reason for Congress party not projecting Rahul Gandhi or any leader. Friends, we are confident, they are diffident. We are for a mission, they are for commission. We have vision, they are living in illusion. We say nation first, they say family first. We believe in Rashtravad, they believe in Parivarvad. We are hardened terrorists, they are hardened nationalists. We believe in democracy, they believe in hypocrisy. We believe in nationalism, they believe in communalism. That is the difference between the BJP and the Congress party and others. मित्रों, 10 साल का जो मनमोहन जी का, सोनिया जी का राज है, ये 10 साल का राज मनमोहनम नहीं है, सर्वनाशनम है। ये लोगों को बताना चाहिए। 10 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క పరిపాలన మన్మోహనం కాదు, సర్వనాశనమైన విషయాన్ని సందు గొంతుకు వీధికి తిరిగి ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం మిత్రులారా. నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అలయన్స్, ఎన్డీఏ మీన్స్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అలయన్స్. यूपीए मीन्स उल्टा पुल्टा अलायंस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसा अध्यक्ष ने कहा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कोई पसंद नहीं करते। मित्रों, हमारा irrespective of caste, creed, sex, religion, India is one nation, one people, one country. That is our slogan. They say majority, minority, they divide the people, we unite the people. Friends, कांग्रेस बिलीव्स इन द वर्ड्स फॉर द पुअर। हमेशा गरीबी के बारे में बात करते, मगर गरीबी का उत्थान के लिए क्या किया उन्होंने? वर्ड्स फॉर द पुअर, डीड्स फॉर द रिच। दैट हैज बीन द हैबिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने अपना बजट में 30 लाख करोड़ रुपया अमीर लोगों को दिया, गरीब लोगों को जो पैसा दिया उसमें कटौती किया इन्होंने बजट में। एक बार बजट फिगर पढ़े तो सबको समझ में आएगा। मित्रों, అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, పేదలకు మాటలు
ధనికులకు మూటలు ఏదో ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ का విషయం అనే విషయాన్ని మన ప్రజానికానికి అంతా కూడా తెలియజెప్పడానికి అవసరంతో ఉంది. మిత్రులు, we say dynasty is nasty in democracy. Congressmen say dynasty is tasty. That is their slogan. Either dynasty is nasty or dynasty is tasty. People will decide in the coming elections. We have seen Congress leaders of the same family ruling the country for more than 39 years. From Delhi to Gandhi, Parliament to Panchayat, Mukhyamantri to municipality, everything was in their hands. Why poverty? Why unemployment? Why terrorism? Why separatism? Why backwardness of Telangana? Why this clamor for a new state? Let the Congress party explain to the people. Why this atrocity and women are increasing? Why the unemployment is growing? You have been in power, your family has been in power, your forefathers have been in power, all the power you had in your hands, you never thought of this. Today you come and then suddenly वो बता रहे 6 सिलेंडर पर्याप्त नहीं है. अभी रात को ज्ञानोदय हो गया क्या? 4 स्टेट में बुरी तरफ हारने के बाद कांग्रेस को ज्ञानोदय हो गया क्या? 6 सिलेंडर नहीं चाहिए, 9 सिलेंडर चाहिए. अरे मैं सीधा पूछना चाहता हूं कार्यकर्ता मित्रों से, कांग्रेस वालों से पूछा, अरे कांग्रेस भाई, किसने जो सिलेंडर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी दे रहे थे मैक्सिमम, उसको किसने रेशन करके 6 तक लाया? बाद में किसने 9 तक रहे? अब क्यों 12? चुनाव के पहले 12, चुनाव के बाद केवल नारा. यही होने वाला है कांग्रेस पार्टी का. ये मुझे याद आ रहे, ये मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसी व्यवहार कर रहे कांग्रेस पार्टी. 6 सिलेंडर, 9 सिलेंडर, 12 सिलेंडर, आफ्टरवर्ड्स नो सिलेंडर. ये सिचुएशन है कांग्रेस पार्टी. इसलिए इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए. ये मोहम्मद बिन तुगलक का स्टेज है. मित्रों, मैं एक विषय आपको ध्यान में लाना चाहता हूं. जो चुनाव हुआ, ये चुनाव का थोड़ा विश्लेषण करिए. जो परंपरागत कांग्रेस को समर्थन करने वाले माइनॉरिटीज, परंपरागत कांग्रेस को समर्थन करने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कांग्रेस से दुखी होके, नाराज होके दूर जा रहे. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका केवल 3 उदाहरण बताऊंगा. मित्रों, उदाहरण में मुख्य रूप में राजस्थान में क्या हुआ? 32 शेड्यूल कास्ट सीट में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिला. राजस्थान में शेड्यूल कास्ट सीट में not even 1 out of 32 seats in Rajasthan for the scheduled caste. In Delhi, out of the 9 seats for the scheduled caste, Congress could get only 1 seat. Even in Chhattisgarh में दलित का 9 सीट रिजर्व था, उसमें कांग्रेस पार्टी को एकमात्र सीट मिला है. छत्तीसगढ़ में 1 सीट, राजस्थान में 9 सीट, दिल्ली में 1 सीट. ये क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश का भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश का भी सुन लीजिए. मध्य प्रदेश का भी सिचुएशन ऐसा है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को शेड्यूल कास्ट सीट्स में 35 सीट्स था शेड्यूल कास्ट, उसमें से 28 सीट भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल किया है मध्य प्रदेश में. शेड्यूल ट्राइब के संदर्भ में तीनों स्टेट्स में मैक्सिमम सीट्स बीजेपी को आया. कांग्रेस पार्टी को बहुत नाम मात्र सीट्स मिला है. मित्रों, मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको. इन्होंने सोचा, अरे भाई मुसलमानों को हम हमारे साथ रह सकते हैं. राजस्थान में कितना मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया? किसी ने मुझे बताया 16 लोगों को. 16 मुसलमानों में 1 मुसलमान भी नहीं जीत पाया. बीजेपी ने 4 लोग को टिकट दिया, उसमें से 2 लोग विजय हासिल किया राजस्थान में शेड्यूल माइनॉरिटी में भी. मध्य प्रदेश में भी माइनॉरिटी ने शिवराज जी के नेतृत्व के कारण से, उनका कामकाज के कारण से मैक्सिमम सपोर्ट माइनॉरिटीज ने मध्य प्रदेश में भी दिया, राजस्थान में भी दिया, छत्तीसगढ़ में भी दिया. और साथ ही साथ मित्रों, शेड्यूल कास्ट के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में, ये तीनों वर्ग जो परंपरागत कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, वो लोग भी हटके दूर जा रहे. कारण क्या है? देश का जनता का मूड का एक उदाहरण है. इन्होंने सोचा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू करेंगे, उसके कारण से वोट ट्रांसफर होगा, मगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वोट ट्रांसफर के रूप में परिवर्तन नहीं हुआ. मैं एक फिगर आपको कोट करूंगा. 152 डिस्ट्रिक्ट्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का लागू किया. उसमें कांग्रेस पार्टी 137 सीट्स में कांग्रेस पार्टी बुरी तरफ हार गया. सो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर डिड नॉट रिजल्ट इन वोट ट्रांसफर, इट हैज एंडेड एज रिजिम ट्रांसफर ऑफ द कांग्रेस पार्टी. तीसरा, उन्होंने वो सोचा आधार के कारण से इनका जनाधार बढ़ेगा.
आधार के कारण से जनाधार नहीं बढ़ा, अंत में निराधार निकल गया। यही स्थिति है आधार कार्ड के बारे में। और साथ ही साथ इन्होंने सोचा फूड सिक्योरिटी के कारण से इनका वोट सिक्योरिटी मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बिल आया, वोट सिक्योरिटी नहीं मिला, बुरी तरफ चारों स्टेट में ये भी हार गया। और मित्रों, जैसा मैं कहा आपको, ये सभी वर्ग जो कमजोर वर्ग है, जो वीकर सेक्शंस है, ऐसा लोग भी कांग्रेस पार्टी से दूर जा रहे। इसलिए मेरा कहना यह है, हम लोग इस चुनाव में आक्रमक होकर, कॉन्फिडेंट होकर, विश्वास के साथ जनता के पास जाना है। और हमारा नेतृत्व के बारे में, नेता के बारे में, नेतृत्व के बारे में, यह हमारा सौभाग्य है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद हमारा साथ है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। और श्री राजनाथ सिंह जी का सारथ्य में, अटल जी का आशीर्वाद से, आडवाणी जी का मार्गदर्शन में और राजनाथ जी का सारथ्य में और श्री नरेंद्र भाई का नेतृत्व में हम सब लोग विश्वास के साथ जनता के पास जाना चाहिए। हमारा 2 कमांडर इन चीफ है, एक लोकसभा में सुषमा जी, राज्यसभा में अरुण जेटली। देश में कोई भी पार्टी का विपक्ष का नेता के साथ तुलना करें तो दे आर मोर केपेबल, दे आर मोर नॉलेजेबल, they are more impressive with regard to the performance as and then they were in power also. We have galaxies of leaders. We have galaxies of chief ministers. We have an ordinary common man, chief minister, Sri Shivraj Singh Chauhan. लोग कह रहे मामा मामा मामा, यहाँ भी बोल रहे, बाहर भी बोल रहे। शिवराज ही राज करेगा, यही नारा। रमन सिंह एक अच्छा प्रशासन दिया वहां। और मनोहर पर्रिकर, अब लोग कह रहे हमको रेड लाइट नहीं चाहिए, उन्होंने लाइट कभी दिया नहीं। और गाड़ी भी साधारण गाड़ी से जा रहे हैं। वो गोवा में है इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ, दिल्ली में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए किसी ने किया, बहुत हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, हाईलाइट होने दीजिए। लोग को ये हेडलाइट के बारे में चिंता नहीं, लोग को अपना स्ट्रीट लाइट के बारे में चिंता है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मित्रों, जैसा मैंने कहा, नेतृत्व एक साथ, दूसरा एनडीए का परफॉर्मेंस और बीजेपी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, ये साथ लेके हम जनता के पास जाए। जैसा अनंत कुमार जी ने आपको 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया, पार्टी ने अपेक्षा व्यक्त किया, रामलाल जी ने बूथ का संदर्भ में जो आपको मार्गदर्शन किया, इसको याद रखिए। गो टू एवरी विलेज, वॉक इन एवरी स्ट्रीट, नॉक एट एवरी डोर, टॉक टू एवरी पीपल एंड देन दे आर ऑल वेटिंग फॉर यू। आप जाइए, दरवाजा खटखट करिए और बताइए हम बीजेपी का है, नरेंद्र भाई मोदी का है। वो बीच बाहर आके आपका पीठ तपतपाएंगे, आपके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, जो देश में जो माहौल है, ये माहौल को हम लोग पूरा सदुपयोग करना चाहिए। अंत में दक्षिण के बारे में एक विषय मैं बताना चाहता हूं। दक्षिण वासियों से आई अपील टू द पीपल इन सदर्न इंडिया, टू दिस नेशनल काउंसिल मीटिंग, प्लीज ज्वाइन द नेशनल मेन स्ट्रीम, join this campaign, become partners of the development, make good number of MPs to win from your state. I am confident in Karnataka, Yediyurappa is back, Appa is back, and party also will be back in Karnataka. And in Andhra and Telangana, it is Seemandhra and Telangana, everywhere in the interior also, Modi, that is the mood of the people. Even in Tamil Nadu, in Kanyakumari, in Tiruchirappalli, for your information, Tiruchirappalli meeting, 10 rupee admission fees, 1,50,000 people have attended the meeting in Tiruchirappalli, in the interior Tamil Nadu, where the BJP has no strength. In Kerala also, it is going to be a great opening. So I am sure, if the workers work hard, if you walk extra miles, the workers from the South India will be able to get good results also in the South India. So friends, I request you to go through the resolution and also the economic resolution, understand the spirit of the resolution, and also take proof from the leaders' speeches, and then go around the entire country. Don't look back till you achieve the goal, and BJP should get maximum seats. We should get comfortable majority, so that there is stability, and our leader, who is known for his determination, he can act more firmly, provided if you give him the needed majority. That should be our appeal to the people. मुझे इससे ज्यादा और कुछ कहने का जरूरत नहीं है। और इसके साथ जो सुषमा जी ने आपके सामने जो प्रस्तुत किया राजनीतिक प्रस्ताव, और जो रविशंकर प्रसाद जी ने अच्छी तरह उसको ड्राफ्ट किया, उसको मैं समर्थन करता हूं। मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करता हूं, आप सब लोग कृपया इसको समर्थन करिए। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद वेंकैया जी। मित्रों, इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता श्री रविशंकर प्रसाद जी को। रविशंकर जी।
श्रद्धेय अध्यक्ष जी, आदरणीय अडवाणी जी, देश के भावी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, हमारे वरिष्ठ नेता, लोकसभा की हमारी नेत्री श्रद्धामना सुषमा जी, राज्यसभा के हमारे नेता आदरणीय अरुण जेटली जी, देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रमन सिंह जी, कार्यकर्ता बंधुओं, इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल से हमारी राष्ट्रीय परिषद चल रही है। 2-3 दिन पहले कांग्रेस की भी एक परिषद हुई थी। कुछ खरी खरी बातें कही गई थी, कुछ कड़ी कड़ी बातें कही गई थी। एक उनके नेता अचानक जोश में आ गए और देश की राजनीतिक परिस्थिति पर बोलते हुए कहा, हमारी ओर इशारा करके कहा कि हम मार्केटिंग करते हैं अपनी पार्टी की। राहुल गांधी जी, आज आपसे एक सीधा सवाल पूछना है। शिवराज सिंह चौहान जी को जब मध्य प्रदेश की जनता ने तीसरी बार 2/3 बहुमत जिताया तो क्या मार्केटिंग से जिताया? रमन सिंह जी को तीसरी बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया तो क्या मार्केटिंग से जिताया? वसुंधरा राजे को अगर 3/4 बहुमत भाजपा की अगुवाई में दिया तो क्या मार्केटिंग से जिताया? दिल्ली में अगर हम सबसे बड़ी पार्टी बने तो क्या मार्केटिंग से जिताया? राहुल गांधी जी, आप क्या कह रहे हैं? होमवर्क नहीं करते? तो इसका मतलब यह है कि आपको मार्केटिंग करने नहीं आती। श्रीमान राहुल गांधी जी, हम सपने नहीं बेचते। भाजपा के नेता तो काम करते हैं, जनता की आकांक्षाओं पर पूरा उतरते हैं और जनता हमें आशीर्वाद देती है और देती रहेगी। यह सच्चाई कांग्रेस के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। जब मनमोहन सिंह की विदाई का समय आया तो कह रहे हैं सीएजी ने हमको काम नहीं करने दिया। मनमोहन सिंह जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो कभी उन्होंने कहा कि कारगिल का युद्ध हुआ इसलिए हम काम नहीं कर सके? कभी उन्होंने कहा कि पोखरण का अणु विस्फोट के कारण पूरे दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगाया तो हम काम नहीं कर सके? कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि गुजरात का भूकंप आया तो हम काम नहीं कर सके? सड़कें बनाई, महंगाई रोकी, देश का विकास किया, हिंदुस्तान को इज्जत दी और कभी दुनिया का बहाना नहीं बनाया। यह काम करने वाली सरकार और जो काम नहीं करती सरकार, उसके बीच का अंतर है। राहुल गांधी जी और बोल रहे हैं, हमने आरटीआई दिया। हम उनसे पूछते हैं भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुका, तो वो कहते हैं खामोश रहो, हमने आरटीआई दिया। हमने कहा काले घोटाले की फाइल क्यों, कोयला घोटाले की फाइल क्यों गायब हो गई, कहते हैं खामोश रहो, हमने आरटीआई दिया। राहुल गांधी जी, आपकी तो बहुत चलती है। आपका इतना पावर है कि आप खड़े होकर बोलते हैं कि 9 गैस सिलेंडर को 12 कर दो और मंत्री खड़े होकर मान लेते हैं। तो अगर इतनी चलती है राहुल गांधी जी आपकी, तो आपने क्यों नहीं भ्रष्टाचार को रोका? आपने क्यों नहीं महंगाई को रोका? मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, जो एक नारा है ना, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, कांग्रेस का हाथ महंगाई के साथ, कांग्रेस का हाथ लूटने वालों के साथ, तो इस कांग्रेस को अब विदा करने का समय है। और इस पूरे राजनीतिक प्रस्ताव में वही आपसे कल्पना की गई है, विश्वास के साथ कहा गया है। मित्रों, यहां के गृह मंत्री हैं, पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्रियों को कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के खिलाफ आतंकवाद के मामले क्या पुनर्विचार करो। क्या अपराधी के रंग, समुदाय और उसके विचार को देकर अपराध के बारे में फैसला किया जाएगा? क्या आतंकवाद का कोई रंग होता है?